ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। आजकल खराब आसन लैपटॉप या डेस्कटॉप ते लंबे समय तक काम करन कारण कमर ते रीढ़ दी हड्डी ते बुरा असर पैंदा है। इस नाल बहुत सारे लोग कमर ते पिठ दर्द तो परेशान ने। बैक पेन दी समस्या हुण बजुर्गां तो इलावा नौजवानां विच ज्यादा वध गई है। इस समस्या तो छुटकारा पाउण लई योगा ते कसरत बहुत हद तक मददगार है। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द दे लक्षण उठन बैठन ते चलन फिरन विच दिक्कत होना, कदे दर्द दा बहुत जल्दी ठीक हो जाना ते कई बार ज्यादा देर रहना, रीढ़ दी हड्डी ते दबाव पैना, कमर दियां मांसपेशियां कमजोर होना, पैरां दी उंगलियां दा सुन्न पैना। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द दे कारण कमर नूं झटका लगना, भारी चीज चुक के चलना, काम करदे होए अचानक झुक जाना, हड्डियां कमजोर होना, गलत तरीकिਆਂ ਨਾਲ उठना बैठना। रीढ़ दी हड्डी नूं सेहतमंद रखण दा तरीका, बैठण या खड़े होण वेले हमेशा अपनी पिठ सीधी रखो, कुर्सी ते बैठदे समय अपने पैर जमीन ते रखो, कसरत करन तो पहला वार्म अप करना ना भुल्लो, अपने भार नूं कंट्रोल करो, रात नूं घट तो घट 7 ਤੋਂ 8 घंटे दी नींद लओ, भारी वस्तुआं नूं चुक्कण दा सही तरीका जाणो, तणाव घटाओ। कमर विच दर्द होण ते नारियल तेल विच सरों दा तेल मिला के इस विच 1 ਤੋਂ 2 चम्मच लसन दियां कलियां पा के चंगी तरह गर्म करके फिर कोसा होण ते इस तेल दी मसाज करो। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द होण ते दालचीनी पाउडर नूं शहद नाल मिला के दिन विच 2 वार लओ। इस तो इलावा कसरत ते योगासन नाल दर्द नूं ठीक कीता जा सकदा है। रोजाना चक्रासन, हलासन, मकरासन, भुजंगासन आदि करन दे नाल कमर दर्द तो छुटकारा मिलेगा। सो साडे शरीर ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਰਵਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਗਰਗ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਚਾਈਏ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਏ
ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁੰਨਪੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, तमाम ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਊਚ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ weight put on ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਲਜ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕੀਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? हाँ जी, तो अगर हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के दर्द के बारे, तो जो रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है, कमर का दर्द जिसको हमको बोलते हैं, वो या तो एक टांग में आपके जा सकता है या दोनों टांगों में जा सकता है, या आपकी एक टांग में झंझनाहट, सुनपना, कीड़ियां लड़ सकती हैं, या दोनों टांगों में झंझनाहट हो सकती है, सुनपना हो सकता है, कीड़ियां लड़ सकती हैं, या चलने में आपको दिक्कत आ सकती है, या आप लड़खड़ा के चल सकते हो, या कमर का दर्द सिर्फ कमर में ही रह सकता है। तो अगर ये लक्षण आए तो इसका मतलब है आपको शियाटिका, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं कि शियाटिका होगी, या अपन रीढ़ दी हड्डी खिसक गई है, जिन्होंने अपन डिस्क दी प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये कमर के लक्षण जो होते हैं, कमर दर्द के लक्षण होते हैं, तो ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकते हैं।
तो ये मोस्ट कॉमन लक्षण होते हैं। यूजुअली अगर आप कोई हैवी वजन उठा लो, नीचे से झुक के कोई आप वजन उठा लेते हैं, या आप कमर को लचका ले, एकदम लचक आ जाए कमर को, हम कहते हैं कि कमर को लचक के या चुक पैगी कमर, तो ये एकदम आपको एकदम कमर कसाव आ जाएगा, आप एकदम स्टिफनेस आ जाएगी आपके कमर में, आप झुक नहीं पाओगे, आपको बेंड नहीं कर पाओगे। तो ये लक्षण होते हैं जो आपको एकदम कुछ घंटों के अंदर अंदर एकदम आ जाएंगे। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि अगर हम तो पहले उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो ये कमर का दर्द है ये किस हद तक है, क्योंकि डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं हो गई है, जिसके पहले सबसे पहले हम एक्सरे करके देखते हैं। तो हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं मरीज को कि अगर आप कमर दर्द से अब इस वक्त आ गए हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी झुक के काम नहीं करना, आपको बैक को प्रॉपर रेस्ट देना है, कमर को एकदम झटका नहीं देना, लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं जाना, जब भी बैठना है आपको ऐसे पीठ को आराम देकर बैठना है, मतलब बिल्कुल, है ना, और आपको पोस्चर बिल्कुल सही रखना है। कोई एकदम आपको स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई नीचे से एकदम बहुत ही वजन नहीं उठाना है। ये चीजें तो पहले बहुत प्रिकॉशंस रखनी चाहिए आपको। उस वक्त जो हम दवाई देते हैं, जो हम कहते हैं पेन किलर्स देते हैं, वो सिर्फ 6 से 7 दिन के लिए हम देंगे। उसके बाद हम न्यूरोपैथिक पेन, अगर पेशेंट डेवलप कर जाता है न्यूरोपैथिक पेन, उस चीज के लिए हम देते हैं। दे आर यूजुअली नॉट पेन किलर्स। और स्ट्रेंथनिंग कुछ हम एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि 15-20 दिन के बाद जब पेन रिकवर हो जाती है उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसको हम बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि आपकी बैक मसल्स को स्ट्रांग करेंगी। जितनी आपकी बैक मसल स्ट्रांग होंगी वो आपकी जो स्पाइन है उसको अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड करेंगी, जिसकी आप बैक पेन जो होगी वो काफी कम हो जाती है। तो ये चीजें अगर ध्यान पेशेंट्स रखे तो काफी हद तक मरीज की बेहतरी हो जाती है। 60 to 70% बैक पेन 1-2 महीने में काफी हद तक काफी कम हो जाती है, अगर मरीज जो हम प्रिकॉशंस उन्हें समझाते हैं कि ये ध्यान रखें तो काफी हद तक पेन कम हो जाती है। जी ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ? ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? देखिए मैम, अगर मैं बात करूं, शियाटिका एक टोटली डिफरेंट चीज होती है। शियाटिका किस चीज से होती है कि अगर आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, डिस्क थोड़ी रीढ़ की हड्डी से थोड़ी बाहर निकल जाए और उसकी वजह से जो नर्व्स दब रही हैं, शियाटिका उसकी वजह से होती है। अब फीमेल्स में यूजुअली कॉमन क्या होता है, पोस्ट डिलीवरी की बात तो करते हैं, लेकिन 30 इयर्स के बाद ओस्टियोपोरोसिस वैसे भी फीमेल्स में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो बैक पेन जो दर्द होता है वो डाइट की अच्छी डाइट ना ले रहे हो, आप पोस्चर अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। डिलीवरी में मोस्टली जो सिजेरियन सेक्शन के बाद फीमेल्स आती हैं कि पिट से इंजेक्शन लगन तो बाद साडा दर्द शुरू हो गया, उस तो बाद यूजुअली वो इतना नहीं होता कि उस इंजेक्शन के बाद दर्द शुरू हो जाए। अगर आप डाइट अच्छे से रखें, अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करें तो काफी हद तक आप उस पेन से अपने आप को रिलीव करा सकते हो। तो मेरा मानना यही है, जो मैं टिप्स देना चाहती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस जरिए, इस चैनल के जरिए एक मैं टिप्स देना चाहती हूँ अपनी सभी जनता को। स्पाइन हेल्दी टिप्स हैं जो सभी को पता होना चाहिए कि एक तो जब भी अपना पोस्चर है वो एक प्लीज पोस्चर आप अच्छा हेल्दी मेंटेन करिए, सीधा बैठिए, सीधा खड़े होइए, ये पोस्चर बहुत जरूरी है। जो आपका डेस्क होना चाहिए वो स्पाइन हेल्दी, डेस्क फ्रेंडली स्पाइन हेल्दी डेस्क होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आपको बेंड करना है, आप कभी भी बैक मत बेंड कीजिए, आप अपने हमेशा नीज बेंड करके नीचे झुकिए। उसके बाद कभी भी आप अपने बैक को झटका मत दीजिए, नीचे कभी भी एकदम झुक के मत वजन उठाइए, नीचे से कभी आपको झुके एकदम झुक के नहीं वजन उठाना, बेंड करके नीज पे बेंड करके वजन उठाना है। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आपको हमेशा करनी चाहिए, आपको हेल्दी फूड करना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड आपको हमेशा खाना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको बैक को स्ट्रांग बनाने के लिए।
ठीक है। और आपको जब भी आपको लॉन्ग सिटिंग करनी है, डोंट मेक श्योर आप एक ही पोजीशन पे काफी देर तक बैठे रहे। मेक श्योर आप थोड़ी देर के बाद उठ के थोड़ा टहलिए हल्का, फिर उस पोजीशन पे आप दोबारा बैठ सकते हैं। अगर ये सारी आप प्रिकॉशंस अच्छे से चीजें ध्यान रखेंगे तो आप काफी हद तक इन बैक प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। जी डॉक्टर स्वाति, ਸਾਡੇ ਨਾਲ कुछ कॉलर भी जुड़े ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सवाल भी जरूर लवांगे जी। बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो जी? मैं जगराओं तो बोल रहा बेटा जी। हाँ जी, की कहना चाहते हो, की सवाल है? मैं ये कहना चाहना भी मेरी मिसेज ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜੀ। जी सो डॉक्टर स्वाति तुसी बेटर जवाब दे पाओगे इसका? हाँ जी सर, देखो अगर दोनों टंगा सुनपना आ रहे हैं और काम करते करते झुक जाते हैं तब पिठ की कमजोरी भी हो सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर उनको शुगर है सर, उनको शुगर है, देखिए सबसे पहले हमें ये जांच करनी होगी, उनका पिठ का एक्सरे करना होगा, हमें देखना होगा उनको डिस्क प्रॉब्लम है या नहीं। कई बार शुगर के मरीजों को भी दोनों पांव में सुनपना और झंझनाहट हो सकती है, तो हमें लैब इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करके एक डायग्नोसिस पे आना पड़ेगा। ये आइदर डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की वजह से भी दोनों पांव में झंझनाहट सुनपना हो सकता है। टेस्ट करने के बाद एक डायग्नोसिस पे आने के बाद ही हम उनकी दवाई और उनकी वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनका वो कर सकते हैं। जी सो डॉक्टर स्वाति, एक होर कॉलर जुड़े ने, उन्होंने सवाल भी ले लेने। बहुत स्वागत है। की ना जी तुहाडा, कित्थों बोल रहे हो? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। हाँ जी, की सवाल है? हाँ जी, अपना सवाल है जी मैडम, जो ना नीवे काम करते ना नहीं झुका कर काम करते लक फुल हो जाता, मतलब हौली हौली सीधा होता फिर। हाँ जी हाँ जी ठीक है डॉक्टर स्वाति, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ। हाँ सर, वही चीज हो जाती है। देखिए मैं सभी अपने व्यूअर्स को एक टिप देना चाहती हूँ सर, कि ये जो कॉमन बहुत प्रॉब्लम सबसे कॉमन मेरे पास ओपीडी में यही पेशेंट आते हैं कि हम झुक के अगर हम कोई काम कर ले, कुछ करें, हमारी एक टांग सुन हो जाती है। वो शियाटिका ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये वही सिम्टम्स होते हैं कि अगर हल्की सी भी डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, जैसा कमर है, मैं रीढ़ की हड्डी का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास ये है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये अपनी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है जी। ये अपनी डिस्क की होती है, ये जो डिस्क निकली हुई है जो सफेद सफेद देख रहे हैं, अगर ये हल्की सी बाहर निकल आए, इसकी वजह से जो नसा होती है, नर्व्स जो होती हैं वो दब जाती हैं। उसके दबने से जो सुनपना आता है, उसकी वजह से पांव में झंझनाहट या सुनपना आता है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो वो डिस्क प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर एकदम हम झुक जाएं या नीचे से एकदम वजन उठा ले, जिसकी वजह से डिस्क बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस होती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स उसके शियाटिका की वजह से होते हैं। तो इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कभी भी झुक के नीचे से हैवी वजन एकदम ना उठाएं। कुछ वजन भी उठाना है तो वो धीरे से करके उठाएं। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि आपके पाँव में झंझनाहट सुनपना आ रहा है, कमर में दर्द है, इसका मतलब आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कोई भी अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से मिले और कभी भी आप झुक के वजन ना उठाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें इस चीज का। इस चर्चा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ नहीं अपनाने चाहिए? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक सवाल किया है घरेलू नुस्खों के बारे में, तो मैं बस ये टिप्स देना चाहती हूँ। अगर ये टिप्स आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर ले
तो आप इन पेन से काफी दूर हद तक अपने आप को रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। सीधा बैठिए, सीधा चलिए, ठीक है, ज्यादा झुक के मत आगे बेंड कीजिए। नंबर दूसरा, ये जो तेल मालिश हम कहते हैं कि बहुत तेल मालिश से आप अपने आप को पीठ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, तेल मालिश कीजिए, लेकिन बहुत अग्रेसिवली तेल मालिश से आपकी मांसपेशियां जो है, इतना भी वो मत कीजिए कि वो ज्यादा अग्रेसिव तेल मालिश हम रिकमेंड नहीं करते। ये आपकी इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगी। आपकी वो थोड़ा सा तेल मालिश करने से एक कंडीशनिंग हो जाती है, बट वो हेल्प नहीं करेंगी कि स्ट्रांग हो जाएंगी मसल्स आपकी, ठीक है। हेल्दी डाइट जरूर हेल्प करेंगी। कैल्शियम रिच फूड्स, दूध ज्यादा पीजिए बिना मलाई के, कैल्शियम लीजिए अपनी डाइट में। जैसे कि वुमेन ओवर एज 30 साल से जो लेडीज होती हैं ऊपर, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, तो कैल्शियम रिच फूड खाना बहुत जरूरी होता है उनके लिए। उसके बाद जहां पे भी आप काम करते हैं, ये जो आपका डेस्क होना चाहिए, ये स्पाइन फ्रेंडली डेस्क होना चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए घर पे। आपकी जो पीठ है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए आपकी पीठ में। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस, योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग करनी चाहिए आपको। ये आप अगर चीजें ध्यान रखेंगे, सब ये चीजें नुस्खे आप ये घर में फॉलो करेंगे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये चीजें ध्यान रखेंगे, नीचे ज्यादा बेंड ना करें, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे से ज्यादा हैवी वजन नहीं उठाएं। अगर उठाना भी है तो सीधा बैक के ऊपर बेंड नहीं करना, नीज पे बेंड करके उठाएं। ये चीजें फॉलो करेंगे तो पीठ का दर्द नहीं होगा आपको जी। ये चीजें पीठ का दर्द आप अवॉइड कर सकते हो। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जी अमृतसर से बोल रहा जी। हाँ जी, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਜੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਕੀ? ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜਨਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ रेकमेंड कर पाओ। सर देखिए, पेन किलर्स बहुत ज्यादा लंबी लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपना विटामिन डी और विटामिन B12 लेवल कराना चाहिए, क्योंकि यूजली बहुत देर तक हम देखें इंडियंस में जो होता है विटामिन डी और B12 जो लेवल्स होते हैं यूजली कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर वो मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो ये जो दर्द होता है, ये कभी जोड़ों में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी पीठ में दर्द भी बन सकता है। तो सबसे पहले आप विटामिन डी और B12 लेवल कराइए, तो आपको पेन किलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये आपके लेवल्स कम होंगे। विटामिन डी कम है तो आपके जो वीकली जो शॉट्स होते हैं वो खा सकते हैं, विटामिन डी लेवल्स को इंप्रूव कीजिए। विटामिन B12 कम है तो आपकी डाइट अच्छी रखिए और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लीजिए। अगर वो नॉर्मल है तो देखिए, पेन किलर सिर्फ हफ्ता आप लगा सकते हैं, 2 हफ्ते लगा सकते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है आपका। तो पहले सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि ब्लड टेस्ट करवाइए विटामिन डी और B12, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कीजिए। जी डॉक्टर स्वाति, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ B12 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर नॉर्मल हेल्दी डाइट हो, जैसे विटामिन डी तो हमें बाहर धूप सनशाइन से ही मिल जाएगा, आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल जाएगा। जो विटामिन B12 होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत मरीज मेरे पास आते हैं कि जी जोड़ा च दर्द हो गया जी, पिट च दर्द हो गया जी, टंका च दर्द हो रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा टेस्ट यही होता है कि मैं विटामिन डी और B12 लेवल्स कराती हूँ। तो बहुत सारे मरीज होते हैं जिनमें विटामिन B12 कम होता है, क्योंकि हमारी डाइट में स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। और अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो
तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन हमारी काफी कम हो जाती है, जिससे विटामिन B12 हमारी डाइट में काफी कम हो जाता है। सबसे अच्छी तो मैं ये चीज कहूंगी कि जो किचन के हमारे खान पान का होता है वो डाइट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सबसे पहली बात तो यही है। लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट्स देखिए कभी भी अच्छे नहीं होते, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए आपके विटामिन डी और B12 लेवल्स। अगर वो डेफिशिएंट है तो उसका एक लेवल होता है। अगर B12 काफी हद तक डेफिशिएंट है तो हम इंजेक्शंस लगवा के वो पूरा करते हैं, और उसके बाद ही हम आपको ओरल टेबलेट्स पे आपको स्विच ओवर करते हैं। और अगर वो सही एक मात्रा पे आ जाएं तो हम वो सप्लीमेंट्स बंद भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के लेवल्स किस हद तक हैं, उस हद तक ही हम सप्लीमेंट्स देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो अपने आप ही अपने आप को आपने ट्रीट नहीं करना, डॉक्टर की सलाह पे ही आपको सप्लीमेंट्स खाने हैं, खुद आपको अपने आप सप्लीमेंट्स नहीं खाने। जी, सो डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। Please stay on the line. ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी जी, डॉक्टर स्वाति। हाँ जी सर, यही है कि लक का दर्द है। सर आपकी उम्र कितनी है? ये उम्र हैगी जी 53। 53, तो उम्र आपकी इतनी ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सर आपको ये कहूंगी कि आप अपना पोस्चर सही ध्यान दीजिए पोस्चर पे। नंबर 2 पे मैं ये कहूंगी कि अगर आपको इतना ज्यादा दर्द है तो नीचे झुक के कभी भी बेंड करके आपको कोई नीचे से चीज नहीं उठानी, नीचे से कभी हैवी वजन नहीं उठाना, पीठ को झटका मत दीजिए, ठीक है सर। और जब भी आपको बैठना है तो जैसे चेयर पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप मुझे ध्यान से दीजिए, ऐसे कमर को रेस्ट करके बैक को ऐसे करके बैठना है, ठीक है। और आप उससे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए, जिससे आपकी बैक स्ट्रांग होगी तो आपका कमर का दर्द जाएगा। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में मैं आपको बताती हूँ, एक स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस होती है। आप सीधा लेट जाइए, ठीक है, और लेग रेस कीजिए, सिंगल लेग रेस। जब आप सिंगल लेग रेस में एक्सपर्ट हो जाए फिर आप डबल लेग रेस भी कर सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद ग्लूट्स अप करके, जो एक ब्रिज, ग्लूट ब्रिज होता है, आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं वो एक्सरसाइज, ग्लूट ब्रिज। वो आपकी बैक को, जो आपकी बैक होती है वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्लूट ब्रिज। थर्ड एक्सरसाइज होती है सर कैट और कैमल एक्सरसाइजेस। ये आपको YouTube पे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, मैं आपको भी शो तो नहीं कर सकती, लेकिन जो बैक स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइजेस कहीं किसी से भी पूछेंगे फिजियोथेरेपिस्ट से, वो आपको एक बेटर समझा पाएगा। ये बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप ले आओ, क्योंकि आप खुद ही कह चुके हो कि बहुत इलाज ले चुके हो, तो बेस्ट होगा कि आप ये बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो। जब आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आपकी जो बैक मसल्स हैं, आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी कमर का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। और सर एक विटामिन डी और B12 आपको भी मैं बोलूंगी कि प्लीज आप वो अपने चेक कराइए कि वो आपके कितने हैं, और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं वो आप फॉलो कीजिए, तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਦਰ YouTube ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੈਕ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? खाने के लिए सबसे पहले मैं फूड आइटम तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाऊंगी। हम यही कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, जो आज लोगों की डाइट है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूध नंबर 1 आइटम रहती है हमेशा, जो हमेशा रिच इन कैल्शियम होता है। दूध तो मैक्सिमम पीना चाहिए, जो मैं इनकरेज करती हूँ हमेशा। पर लेकिन हाँ, डेफिनेटली बिना मलाई के मैक्सिमम दूध जितना पी सकते हो, दही, पनीर, ये आइटम्स आपको इंक्लूड करनी चाहिए। दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम सप्लीमेंट्स
आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर, क्योंकि कईयों को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, वो आप अपने कंसल्टेशन के बाद करने चाहिए। विटामिन डी लेवल चेक कराइए, विटामिन B12 लेवल चेक कराइए, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपको विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं वंस वीकली। उसके बाद मंथली हम आपको करते हैं विटामिन B12 लेवल चेक कराइए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट्स करके आपके स्पाइन को हेल्दी बना सकते हैं। और ऑरेंजेस एक बहुत अच्छी चॉइस है आपके, वो भी उसमें विटामिन सी रिच होते हैं। जो विटामिन सी रिच फूड होते हैं वो आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। नट्स आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। जंक फूड अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए, ये सारे फूड अवॉइड कीजिए। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। एंड हेल्दी एक्सरसाइजेस, योगा एक्सरसाइजेस, पीठ को आप फ्लेक्सिबल बनाइए। ये चीजें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। जी डॉक्टर स्वाति, एक लास्ट ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैम बच्चों का यूजली यही रहता है कि बच्चों की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बच्चों में हम यूजली ऐसे केसेस इतने देखते नहीं है अनलेस और अनटिल को उनका कोई ट्रॉमा हो जाए या कुछ वो एक्सीडेंट हो जाए। अदरवाइज दे आर फ्लेक्सिबल इनफ। तो हम बच्चों में यूजली ये चीज नहीं देखते अनलेस और अनटिल हम यूजली कहते हैं कि कोई बहुत ही हैवी वजन उठा ले या ट्रोमैटिक हो जाए। मैं दोबारा वर्ड यूज करती हूँ कि ट्रोमैटिक हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, बहुत हैवी वजन उठा लिया या बहुत कहीं से गिर गए या कुछ हो जाए। अदरवाइज उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है बच्चों में कि वो यूजली फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनमें हम यूजली इतनी चीजें वो देखने में हमारे यूजली जो डे टू डे प्रैक्टिस होती है उनमें बच्चों में ये चीजें लेकर नहीं आते हम। तो बिकॉज वो ग्रोइंग एज होती है, उनकी डाइट इतनी अच्छी होती है, तो वो चीजें यूजली उनमें होती नहीं है। तो उनमें प्रिकॉशनरी रखने के लिए फिर भी हम यही कहेंगे, क्योंकि डाइट जी ये देसी घी अच्छे से रखिए। ये मैं रिकमेंड ये भी जरूर कहूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप देना चाहती हूँ आज की डेट में। देसी घी हम पहले कहते थे कि नहीं खाना चाहिए, पर आज की डेट में हम कहते हैं कि देसी घी इज गुड। उसमें आपकी ज्वाइंट जो वो होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं। 1 चम्मच तो आप खा ही सकते हैं, और बच्चों में तो आप अच्छे से खिलाइए, मक्खन, देसी घी, दूध। ये डाइट अगर बहुत अच्छे रखेंगे तो ज्वाइंट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं और उनपे मजबूती रहती है। ये अगर डाइट का बच्चों में बहुत अच्छे ध्यान रहेंगे तो उनमें जो ज्वाइंट्स का है ये काफी अच्छे से आप उनमें ख्याल रख सकते हैं बच्चों का। जी सो डॉक्टर स्वाति बहुत शुक्रिया, तुसी अज दे इस सेहत संबंधी समस्या ते बहुत चंगे तरीके नाल एक्सप्लेन किया है। मैंने उम्मीद है कि मेरे जिन्ने भी दर्शक ने उन्होंने सारिਆਂ तक ये मैसेज क्लीयरली पहुंचा होगा कि जेकर असीं रीढ़ की हड्डी के दर्द तो बचना चाहते हैं, सब तो पहला है कि सानू अपना पोस्चर ठीक करना पैना है, साडी जिहड़ी लाइफ स्टाइल है उसनू सही दुरुस्त करना पैना है, डाइट असीं वधिया लईए, ते जेकर सानू प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उस तो बाद जिहड़े प्रिकॉशनस लैने ने वो बहुत जरूरी ने। बार बार डॉक्टर स्वाति ने समझाया। बहुत शुक्रिया तुसी जुड़े और अज इस समस्या के उत्ते अपने विचार रखे ने। सो रीढ़ की हड्डी तो बचन दे लई जो साडे माहर ने दस्सिया वो जरूर फॉलो करो और एक चंगा लाइफस्टाइल अपना के चंगी डाइट नूं इनकलूड करके तो जिहड़ियां चीज़ां दे नाल प्रॉब्लम हो सकती है उस तो बचिया जा सकता है। कि जेकर तुहानूं लगदा है कि रीढ़ की हड्डी दे विच दर्द आ रहा है तो ज़्यादा झुकण वाले काम ना कीते जाण और संभल के जिहड़ी है इस समस्या तो बचिया जा सकता है। संजीवनी प्रोग्राम दे विच एक होर सेहत संबंधी नुस्खे दे नाल दोबारा तो हाजिर होवांगे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।